Hello everyone, I am Justina Paris and I welcome you all to this week's most important topic. So यहाँ पे आपको पता ही चल गया होगा कि मेरा इस हफ्ते का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, बिकॉज इस पूरे हफ्ते में हमने एक आर्टिकल कॉन्स्टेंटली डिस्कस किया है, वो है नेपाल के प्रोटेस्ट. So let's understand about this Nepal's protest. We'll also discuss about India-Nepal relations. We'll discuss about what are the different political, economic ties with the neighboring country. We'll also see what are the disputes that we have with this country, and we will see कि अभी what is the situation in Nepal. Let's start with the discussion. So यहाँ पे हम देखते हैं कि what was the trigger event that led to the Nepal protest. किसने ये protest किया है, क्यों protest कर रहे हैं. So it started off with of course the actions of the previous prime minister जो है KP Oli Sharma. Now we know that the prime minister has changed, but previous prime minister थे KP Sharma Oli, तो उनके यहाँ पे actions की वजह से ये protest हुए. So it started on 8th September. Remember, it was started off as a peaceful protest. The protest was led by a NGO group called as हामी नेपाल. ठीक है, ये एक NGO group है जिसने ये स्टार्ट किया, and they assembled peacefully at मैतीगढ़ मंडाला. Okay, and वहाँ पे काठमांडू में जो फेडरल पार्लियामेंट बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे ये आ गए थे. They kind of gathered there. So ये जो protesters थे पीसफुली स्टार्ट किया, बट इट बिकेम वायलेंट बिकॉज जो पुलिस फोर्सेस जो तैनात हुई, जो आए, उन्होंने फायर करना स्टार्ट किया, टेयर गैसेस, लाठीचार्ज स्टार्ट की, एंड इस रीजन की वजह से 19 यूथ की हत्या हो गई. So 19 youth were killed, several were injured, and therefore this further ignited further. तो ये प्रोटेस्ट उनकी एक्शंस की वजह से हुआ. ये प्रोटेस्टर्स कौन है? प्रोटेस्टर्स आर मेनली कॉल्ड एज द जेन जी और द जनरेशन जी यूथ, जो 1996 से 2012 के बीच में बॉर्न हुए हैं. सो यू विल फाइंड देम बिटवीन 6 to 14 years or so, 16 to 25 years, and they are approximately 20% of the population and 90% of the 30 million users जो इंटरनेट यूज करते हैं. तो इन्होंने मोबिलाइज, ये साथ में आए थे थ्रू हेल्प ऑफ अ फेसबुक पेज कॉल्ड एज नेक्स्ट जनरेशन नेपाल. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम की फैक्ट्स एज वेल. ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ? सो ऑफ कोर्स द ट्रिगर इवेंट वाज द सोशल मीडिया बैन, राइट, द सोशल मीडिया बैन, जहां पे 26 प्लेटफॉर्म्स को बैन किया था नेपाल के देन प्राइम मिनिस्टर केपी ओली शर्मा ने, लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, राइट. नाउ ये बैन की वजह से it was why did it lead to a protest? Because ये जो सोशल मीडिया है, this is a tool for voicing their opinion. ये उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच को जब उन्होंने curtail किया, this led to creating anger against the government. So this is what is seen as suppression of the freedom of expression. Now यहाँ पे जो नेपाल के youth थे, they used to publish about what are the wrong things happening with the government. ये publicize करने लगे something called as the lifestyle of the politician के बच्चे, जो nepo babies या nepo kids कहते हैं. So यहाँ पे when they started publicizing the extravagant and the opulent lifestyle of these politicians' children, like ministers' children, people were starting talking about it, and नेपाल की गवर्नमेंट ने एक इशू भी, एक यहाँ पे ऑर्डर जारी किया था 2023 में कि you have to ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, यू नीड टू रजिस्टर विद द गवर्नमेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो जैसे कि हमारी आईटी मिनिस्ट्री है, वैसे उनका मिनिस्ट्री में तुमको रजिस्टर करना पड़ेगा, और वार्निंग्स और सब दिए थे, बट अभी तक ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, दे डिड नॉट रजिस्टर विद द मिनिस्ट्री, जिसके कारण दे put a ban on these social media websites. Now TikTok भी था, but TikTok then registered and so on, and now it is not in the ban. And currently हम देखते हैं कि ये जो ban भी लगाया था, इसको उन्होंने हटा दिया है. Now here, apart from the social media जहाँ पे उनके voices वो लगाते थे, they used to speak about it. Another reason for it is corruption बहुत ज़्यादा हो गया था नेपाल में.
So there was massive corruption and political immunity since Nepal became a republic. तो नेपाल 2008 के पहले was a monarchical government, kings का rule होता था, but 2008 में it became a republican. Right, so they had a parliament and so on, a constituent assembly बनी थी. उनका constitution आया था 2015 में. So you imagine it is a newly democratic country, if we have to call it. Constitutional यहाँ पे provisions और सब बहुत बाद में आए हैं 2015 में. And यहाँ पे जो politicians भी आए हैं, they started being more corrupt. Okay, we saw that it was a clash between the elites and the youth. ओके, इन दोनों के बीच में एक क्लैश होने लगा. तो एलिट जो रॉयलिस्ट थे, जो मिनिस्टर्स थे, सो दे हैड वेरी नाइस लाइफस्टाइल. ये एलिट्स, उनके बच्चे बाहर देश में पढ़ते थे, सो दे लिव्ड अ वेरी गुड लाइफ. whereas a youth जो है, which is of course we saw 20% of the population, यहाँ पे they did not have jobs की कमी थी, unemployment. okay, so they are facing this inequality. यहाँ पे जॉब्स नहीं है विद रिगार्ड टू इन द रीजन. ठीक है, सो दैट इज वेयर दे फेल्ट दैट काइंड ऑफ एंगर अगेंस्ट द गवर्नमेंट. सो फर्दर द अल्टीमेटम या द लास्ट जो ट्रिगर था was because of the ban कि उन्होंने बोला अब बस हुआ. And that is where even we saw many people were injured. Now let's say what is the demand of these protesters. पहले firstly what did they demand by these Gen Z protesters? इनको ये जो मिनिस्टर थे, उनके प्राइम मिनिस्टर थे KP ओली शर्मा, he wanted him to resign. So he resigned also on September 9th. And protest किसने you can say lead किया? It was Sudan Gurung. Okay, and they also wanted Balendra Shah, okay, who was the mayor, Kathmandu mayor. ये इनको भी अपना लीडर मानते हैं, but they then selected somebody else as the prime minister, which we will see in a while. Further यहाँ पे जो की facilitator है, that would be army to maintain की peace हो. So now imagine, luckily we did not have a military rule in Nepal. They have kept the first woman chief minister, जो यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, सुशीला खरकी, जो एक चीफ जस्टिस रह चुकी है. सो शी इज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल. यहाँ पे याद रखना है कि प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व किया था पार्लियामेंट, और अभी इलेक्शंस होने वाले हैं March 5th 2026 में. ओके, दिस वाज ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्राइम मिनिस्टर्स रिकमेंडेशन. सो शी टुक एज द ओथ ऑफ ऑफिस. अभी की प्राइम मिनिस्टर अगर पूछा तो याद रखना इट इज सुशीला कर्की, और प्रेसिडेंट पूछा ऑफ नेपाल तो याद रखना इट इज रामचंद्र पुदेल. सो ये जो प्रोटेस्टर्स, जेन ज़ी प्रोटेस्टर्स थे, इन्होंने असॉल्ट करना स्टार्ट किया. एंड एक दुखद बात थी कि वन ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स वाइफ ऑल्सो पास्ड अवे, बिकॉज उन्होंने ये जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने आग लगा दी थी उनके घर में भी. सो असॉल्ट हैपेंड, दे स्टार्टेड चेजिंग मिनिस्टर्स, दे स्टार्टेड अटैकिंग, दे स्टार्टेड बर्निंग, दे स्टार्टेड वैंडलाइजिंग. सो ऑल दिस हैपेंड एंड इट वाज अ होल रकस, बट दे वांटेड टू बी हर्ड, एंड दैट इज वेयर दे डिसाइडेड कि बस और नहीं झेल सकते हैं, अभी हमको ये स्टेप उठाना पड़ता. नाउ कमिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर इंडिया नेपाल टाइज, इससे हमको क्या इफेक्ट हो रहा है, ऑल ऑफ दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ. सो फर्स्टली नेपाल के साथ हमारे बहुत ही पुराने हिस्टोरिकल टाइज है, कल्चरल टाइज, बिकॉज वी नो कि हमारा बॉर्डर लगता है ना. सो दैट इज वेयर वी सी देयर ऑफ कोर्स मे बी सम डीप रूटेड टाइज है. सो विद रिगार्ड टू कल्चरल, सिविलाइजेशनल, रिलीजियस लिंक्स, बोथ मेजॉरिटी हिंदू नेशन. सो दोनों कंट्रीज में हिंदू इज द मेजॉरिटी रिलीजन दैट वी सी. यहाँ पे शेयर्ड ट्रेडिशंस भी है, जैसे कि रामायण, बुद्धिज्म. हम देखते हैं जो बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा था वो है लुम्बिनी, जो नेपाल में है. सो देयर इज कॉमन टाइज विद रिगार्ड टू बुद्धिज्म. फेस्टिवल्स बहुत सिमिलर हैं, जैसे कि दशैन, तिहार, छठ, ये सब भी करते हैं, जैसे मेनली बिहार में ये होते हैं. देन ओपन बॉर्डर पॉलिसी भी फॉलो करते हैं हम, जहाँ पे फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, जैसे नेपाल के लोग इंडिया आ सकते हैं, इंडिया के लोग नेपाल जा सकते हैं. सो ये फ्री मूवमेंट, ऐसे कुछ पोस्ट भी बनाए हैं वेयर दे कैन इजीली हैव द मूवमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज.
देन जो नेपाल के जो डायस्पोरा है, नेपाल के जो लोग हैं वो इंडिया में रहते हैं, इंडिया में काम करते हैं। इनफैक्ट हमारे आर्मी में भी वो भर्ती है अंडर द गोरखा रेजिमेंट, ठीक है। सो इन द इंडियन आर्मी ऑल्सो दैट द नेपाल पीपल आर ऑल्सो सर्विंग अंडर द गोरखा रेजिमेंट। फर्दर पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करते हैं। इंडिया और नेपाल के बीच में जो रिलेशंस अभी है, इट इज बेस्ड ऑन द 1950 ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। So this is the basic foundation of our ties today. यहाँ पे हम allow करते हैं free movement of people, trade, work, okay, close security cooperation हम maintain करते हैं because of the 1950 जो हमने relations maintain किया। Further, India supported Nepal's transition from monarchy. So monarchy से वो बन गए थे, democratic setup आया था 2008 में, तो वो भी इंडिया ने support किया। Further, नेपाल ऑलवेज प्लेज दिस बैलेंसिंग गेम, जहां पे एक जगह पे चाइना और दूसरे जगह पे इंडिया। चाइना भी चाहता है कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे नेपाल में। इट वांट्स टू कीप अ क्लोज चेक ऑन नेपाल बाय हैविंग अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स देना। सो कुछ प्राइम मिनिस्टर्स होते थे जो चाइना के साथ ज्यादा बेटर रिलेशंस करते थे। सिमिलरली सम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ नेपाल हैव हैड क्लोज रिलेशंस विद इंडिया। सो नेपाल हैज ऑलवेज हैड टू प्ले दिस बैलेंसिंग एक्ट। Now India और नेपाल के बीच में which are the common groups, okay, common groupings या common organizations हैं, ये आपको मुझे comment section में बताना है। This is a question for you. What are the common groups in which both India and Nepal are there? Think of regional groupings, okay? So यहाँ पे India, Nepal have common membership in this. So that is your question. Proceeding to economic relations, तो इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो नेपाल सबसे ज्यादा ट्रेड किस कंट्री के साथ करता है, इन्वेस्टमेंट किस कंट्री के साथ करता है, दैट इज इंडिया। सो इंडिया पुट्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ट्रेड करता है, सो दैट वी कैन सी क्लोज रिलेशंस विद रिगार्ड टू इकोनॉमी। हमको पता है नेपाल इज लैंडलॉक्ड, अपार्ट फ्रॉम नेपाल भूटान इज ऑल्सो लैंडलॉक्ड। तो ये रिलाई करता है हमारे पोर्ट सिटीज, ओके, हमारे पोर्ट सिटीज टू ट्रेड वाया द बे ऑफ बंगाल, राइट। सो नॉट जस्ट ऑन इंडियन पोर्ट्स बट ऑल्सो बांग्लादेशी पोर्ट्स। तो नेपाल एंड भूटान हमारे पोर्ट सिस्टम्स यूज करते हैं टू टेक देयर कार्गो। Okay, now essential goods की बात करें, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, ये इंडिया यहाँ पे सप्लाई भी करती है एंड मेजर डेवलपमेंट भी इंडिया ने किया है वहां पे। इफ यू टॉक अबाउट रोड्स, रेलवेज, हेल्थ, एजुकेशन, हाइड्रो पावर। अगर यूपीआई की बात करें वहां पे भी हम देखते हैं कि यस यूपीआई भी चलता है। फर्दर हम इंपोर्ट भी करते हैं वहां से हाइड्रो पावर फ्रॉम नेपाल। सो वी गॉट अ नंबर ऑफ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इन नेपाल एज वेल, विच इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट क्लीन एनर्जी कोऑपरेशन। Proceeding to understand strategic relations between the two countries now. Now, इंडिया और नेपाल के बीच में कितने किलोमीटर का बॉर्डर है? इट इज 1770 किलोमीटर। are there any disputes? Yes, there are disputes which we are going to be covering in a while. तो ये जो बॉर्डर है, हम प्रॉब्लम्स आती हैं यहाँ पे भी, जैसे कि टेररिज्म, स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब भी यहाँ पे होता है। ओके, वी ऑल्सो सी इन टर्म्स ऑफ द इंडियन आर्मी में, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, कि गोरखा रेजिमेंट जहाँ पे नेपाल के लोग इंडियन आर्मी में भी सर्व करते हैं, विच टॉक्स अबाउट स्ट्रेंथेंड डिफेंस टाइज। फर्दर इंडिया हैज प्लेड द रोल इन नेपाल पीस, जहां पे हमने देखा जब वो ट्रांजिशन भी कर रहे थे तब हमने उनको सपोर्ट किया था, बट समटाइम्स इट लुक्स, नेपाल इसको देखता है एज इंटरफियरेंस इन आवर इंटरनल मैटर्स। तो ये भी कहा गया है, बट इंडिया इज लुकिंग आफ्टर इट एज अ बिग ब्रदर। सो दिस हैज बीन अ पॉइंट ऑफ क्लैश बिटवीन द टू कंट्रीज। फर्दर The ties with China is another alarming thing for India, जैसे कि Belt and Road Initiative, China infrastructure बना रहा है, so this is not liked by India because it has close proximity to China. Now, what is the name of the military exercise जो इंडिया और नेपाल के बीच में है, ये आपको मुझे comment section में बताना है। What is the name of the military exercise that is between India and Nepal? Again, answer in the comment section.
Proceeding to the next part with regard to the border tensions. Now there are mainly two border tensions that we have. Firstly is the Kala Pani Lipu Lake Limpiadura region. ये कहाँ पे region है? ये है उत्तराखंड नेपाल. So नेपाल जो है ये उत्तराखंड वाले साइड से जो border touch होता है इनका, यहाँ पे ये border issue है. Now this particular region actually is a tri-junction region with India, Nepal and China जो तिब्बत का पार्ट है. So हर कंट्री बोलता है कि ये मेरा पार्ट है, दूसरा कंट्री बोलता है मेरा पार्ट है. Now this is because of the varied source of the Kali river. जो Kali river है that is passing both in India and Nepal. तो इनके वजह से there is some sort of dispute कि उनका source क्या है. Now ये Kali river क्या है, let's understand. एक ट्रीटी आई थी, ट्रीटी ऑफ सुगौली. दिस ट्रीटी वाज साइंड इन द ईयर 1816. ये कौन से दो पार्टीज के बीच में साइन हुआ था? दिस वाज फर्स्टली साइंड आफ्टर द एंग्लो नेपाल वॉर. एंग्लो नेपाल वॉर के बाद 1816 में ये साइन हुआ था, फर्स्टली विद द नेपाल पीपल एंड विद द ब्रिटिश पीपल. तो हमको पता है एंग्लो नेपाल में द ब्रिटिश वर फाइटिंग एंड नेपाल यहाँ पे हार गई थी. तो यहाँ पे कुछ रीजन्स ऑफ कोर्स हम अपने इंडिया में लाए थे. सो वी टॉक अबाउट द सिक्किम रीजन, वी टॉक अबाउट द गढ़वाल रीजन, द कुमाऊं रीजन. ये सब इंडिया के पास आया था, ब्रिटिश ने इंडिया पे ले लिया था. कुछ पार्ट ऑफ तेराई रीजन भी हमारा था बट कुछ पार्ट हमने वापस से दे दिया. ठीक है. सो दिस वाज द ट्रीटी ऑफ सुगौली साइंड इन 1816. So this led to many regions taken by the British. Now based on this, इन्होंने decide किया था कि जो कली river है that flows here, this will be like the western limit of the Nepal region. Okay, जो कली river है कहाँ पे उसका जो extend border है उसका जो left है that will be Nepal. Now there is a confusion कि ये वाला region है कि ये वाला region है. So उत्तराखंड में दो वाले regions है, एक है काला पानी region और दूसरा है जो लिपू लेक region. So where is the origin? अगर हम ये वाला region लेते हैं तो they get a larger share, whereas यहाँ पे they will get a smaller share. So that is the point of dispute here. तो इंडिया चाहता है कि काला पानी उत्तराखंड जो है वो हमारा रीजन है. ओके. ऑन द अदर हैंड नेपाल कहता है कि नहीं, ये जो रीजन है वो हमारा है एंड ये दाराचुला डिस्ट्रिक्ट विच इज सुदूर पश्चिम प्रोविंस उनका है. सो ये जो काला पानी जो उत्तराखंड है ये हम बोलते हैं यूके का पार्ट है, उत्तराखंड का पार्ट है, whereas दे से कि नहीं वो उनका पार्ट है एज अ पार्ट ऑफ द धाराचुला डिस्ट्रिक्ट. नाउ 2020 में हमने क्या किया? वी ओपनड अ रोड टू द लिपू लेक पास. यू नो लिपू लेक इज इन उत्तराखंड. यस. तो यहाँ पे ट्रेड रूट ओपन किया है हमने तिब्बत के साथ एंड दिस लेड टू नेपाल बीइंग एंग्री कि ये तुमने कैसे, ये तो डिस्प्यूटेड है. तो नेपाल ने उनका एक मैप ये किया जहां पे काला पानी, लिपू लेक और ये जो लिम्पू दुरिया है इनको उन्होंने अपने मैप में शामिल कर लिया. सो दैट वाज द इशू इन 2020. द सेकंड इशू दैट वी सी इज द सस्ता विच इज बिहार के साइड में, बिहार नेपाल बॉर्डर पे ये लगता है. सो दिस इज लोकेटेड इन द वेस्ट चंपारण बिहार जो गंडक रिवर है. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड एज द सॉरो ऑफ बिहार? व्हाट रिवर जो फ्लो करती है नेपाल और इंडिया में भी, which called as the sorrow of Bihar? Please use the comment section to answer. Clear? ठीक है. So now dispute यहाँ पे प्रॉब्लम है कि गंडक रिवर also tributary of गंगा. तो इसके चेंजिंग कोर्स की वजह से अगेन there's a dispute कि किसके पास ये रीजन आता है. सो नेपाल क्लेम करता है कि इंडिया ने एनक्रोच किया, ये जो सस्ता रीजन है वो उनका होना चाहिए, बट हम बोलते हैं ये सस्ता रीजन है, ये बिहार का ही है, चंपारण पार्ट ही है. सो दिस हैज बीन द डिस्प्यूट बिटवीन द टू रीजन्स. So coming to understand what now are the recent developments between the two countries. दो countries के recent developments अगर हम 2022 की बात करें, 2022 की बात करें, I have also talked about कि हमने हाइड्रो पावर उनसे इंपोर्ट किया है. सो देयर आर मेनी प्रोजेक्ट्स इन नेपाल और कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने नाम दिया है यहाँ पे, अपर कर्नाली हाइड्रो प्रोजेक्ट, अरुण प्रोजेक्ट, देयर इज ऑल्सो महाकाली प्रोजेक्ट.
ओके, महाकाली ट्रीटी, महाकाली प्रोजेक्ट. सो दीज आर सम प्रोजेक्ट जहां पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं नेपाल. सो दीज आर द रिसेंट प्रोजेक्ट्स दैट हैव साइंड, जहां पे हम इंडिया इलेक्ट्रिसिटी ले रही है नेपाल से. फर्दर 23-24 में हमने ट्राई किया है कि जो बॉर्डर इश्यूज हैं इसको ठीक ठाक किया जाए. और अभी रिसेंटली हमने क्या देख रहे हैं, जो इंस्टेबिलिटी है विद रिगार्ड टू द जेन ज़ी प्रोटेस्ट. नाउ इंडिया इज क्लोजली वॉचिंग दीज issues that are going on, and उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने also chaired an important meeting to discuss okay what will be the implications on us. Now this is still erupting slowly. इसमें और भी कुछ बाकी, अभी के लिए तो यहाँ पे सेट किया है कि कौन सी प्राइम मिनिस्टर है, when will be the next elections, जो डिसाइड किया है कि 2026 में नेपाल में इलेक्शंस होंगे, बिकॉज अभी जो पार्लियामेंट है उसको उन्होंने निकाल दिया है. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग अ नंबर ऑफ positive posts on social media जहाँ पे they've started the cleanup drive both literally and figuratively, right? यहाँ पे वो clean कर रहे हैं roads ये. So to see that, it gives so much of understanding, and it's also a message for many governments across the world कि अगर मान लो आपने गलत करोगे तो आपके साथ गलत हो सकता है. अगर आप करप्शन करोगे तो आपको ऐसा ही निकाला जा सकता है. So your position is temporary, and of course you have to listen to the people, what the people want. If you upset the people and you are not giving them what they deserve and require, then you don't deserve to be in the office. So that's the message for all of us, and with that I will leave you with this week's most important topic. Thank you so much for watching.